شکریہ کسیم بھائی، آپ نے مجھے جو ہے وہ اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور میں اپنے ہم منصب بھائی جو اس سے پہلے ساتھی ہیں وہ تفصیلات ادا کر رہے تھے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور بابر یوسف صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ کسیم بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ریت رواج کے مطابق یہ سلسلہ تاریخی بلرے جھاڑتے جائیں اور اس طرح کے درجنوں واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ نے دو واقعات کا ذکر کیا، ایک کنزا جو ایک یونیورسٹی کی طالب علم تھی اور وہ اپنے آبائی علاقے کی طرف روانگی کے دوران اغوا ہوتی ہے اور درندگی کا نشانہ بنتی ہے، اور دوسری جانب بلوچستان میں پیش آنے والا حالیہ یہ جو واقعہ ہے ایک بار پھر ہمارے معاشرتی نظام، روایتی قبائلی سوچ اور ریاستی کمزوریوں کو بے نقاب کر گیا ہے۔ ضلع ڈیگاری میں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی بانو بی بی اور احسان اللہ جن کا نام بتایا گیا کو دن دہاڑے گولیاں مار کے قتل کیا گیا ہے، تو یہ ایک واقعہ انسانیت سوز واقعہ ہے۔ اب یہ جس طرح سے ابھی بابر صاحب بھی فرما رہے تھے، کل اس پہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں یہ بات جو ہے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ شادی شدہ تھے آلریڈی، وہ ازدواجی رشتے میں منسلک نہیں تھے۔ اچھا حمزہ بھٹی، میں آپ کو یہاں کٹ کر رہا ہوں، آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی تو وہ بار بار ان کے یہ الفاظ تھے، وہ ناجائز تعلقات تھے، وہ ایسے رہ رہے تھے تو ویسے رہ رہے تھے، اس بات کا آپ نے غور کیا ان کے؟ جی میں وہی کسیم بھائی وہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہر چیز کو دبانے کے لیے، ہر چیز کو کور اپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار ڈھونڈا جاتا ہے۔ جی بالکل، اور برسر اقتدار لوگوں کے لیے یہ بہت ساری چیزیں اسی طریقے کی نظر آتی ہیں کہ وہ اسی طریقے سے ان چیزوں کو کور اپ کریں، اور عوام جو ہے ان کو تھوڑا نارمل اور کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کی چیز ناجائز رشتہ تھا، اس وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ بھائی آپ کو کس نے اجازت دی کسی کو قتل کرنے کی، کسی کی جان لینے کی؟ اگر وہ 5 بچوں کی 4 بچوں کی ماں تھی تو آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ 5 بچوں کی ماں کی زندگی چھین لیں؟ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ 4 بچوں کے باپ کی زندگی چھین لیں؟ اگر میں ماضی کے کچھ رپورٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو 2024 میں صرف بلوچستان میں HRCP میں 30 سے زائد ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جن میں سے اکثریت میں ملزمان باعزت بری ہوئے، جو اس میں بھی ریت رواج کے مطابق انشاءاللہ ایسے ہی ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ قبائلی رسم و رواج اور جرگہ سسٹم آج بھی انسانی زندگی سے بالا تر حیثیت رکھتے ہیں۔ ریاست اکثر ایسے عناصر کے خلاف ایک حد سے آگے جانے سے گریز کرتی ہے، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ قاتلوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اس واقعے نے سوشل میڈیا کے مثبت پہلو کو بھی اجاگر کیا ہے، اگر یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو شاید یہ واقعہ بھی خاموشی سے دفن ہو جاتا۔ بانو بی بی کی آواز جو قتل سے پہلے ویڈیو میں بلند ہوئی وہ آج پورے پاکستان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ یہ لڑکی نہ صرف خود کے لیے بلکہ ہزاروں ایسی بچیوں کی نمائندگی بن گئی ہے جنہیں اپنی پسند پر سزا دی جاتی ہے۔ قسیم بھائی، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جس طرح سے بابر صاحب نے کہا کہ امید ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، 11 افراد کو گرفت میں لے لیا گیا، لیکن ایک روزہ جسمانی ریمانڈ اتنے بڑے واقعے کا جو پورے پاکستان کے لیے درد سن بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس پہ ایک دن کا جسمانی ریمانڈ اس سردار کا دیا جاتا ہے، کیا وہ کافی ہے؟ نہیں، بالکل۔ دوسری طرف جو کنزا والا معاملہ ہے، آپ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے، آپ کے سامنے آتے جائیں گے، تاریخی پلڑے جھاڑتے جائیں گے، آتے جائیں گے، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ بری الزما۔ یہ تماچا ہے ہماری ریاست پر اور ہمارے اس مذہب پر، جو ہمارا اسلامی مذہب جس میں عورت کی عزت سب سے مقدس سمجھی جاتی ہے۔ میرے اسلام میں، میرے اللہ رب العزت نے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی عزت کو سب سے مقدم سمجھا۔ عورت ماں ہے، عورت بیٹی ہے، عورت بہن ہے۔ یہ وہی رشتہ ہے جس کے ساتھ آپ ازدواجی تعلق بناتے ہیں، یہ وہی رشتہ ہے جس کو آپ ماں پکارتے ہیں، یہ وہی رشتہ ہے جس کو آپ بیٹی پکارتے ہیں۔ بیٹی کو رحمت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے تمام تر واقعات جو کرتے ہیں ان کو بھی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ میرے گھر میں ماں بہن بیٹی موجود ہے، اور برسر اقتدار بیٹھے لوگوں کے لیے بھی یہ میری اپیل ہے، پرزور اپیل ہے کہ وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اگر وہاں پر آپ کی ماں بہن بیٹی ہوتی تو کیا اس کے حوالے سے بھی اس طرح کی پریس کانفرنس سامنے آتی کہ وہ ازدواجی رشتے سے منسلک نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، یہ پتہ نظر کہ وہ ازدواجی رشتے میں منسلک تھے یا نہیں تھے۔ 2 جانوں کو قتل کیا گیا، بے دردی سے قتل کر کے اس کی ویڈیو بنا کر سرعام سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے، اور آپ کی پریس کانفرنس آپ کی جو ہے وہ اس میں ندامت کو واضح کرتی ہے، آپ کی بے حسی کو واضح کرتی ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے واقعات دوبارہ سے بھی رونما ہوں گے، اور یہ سرکار جو ہے یہ بری الزما ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ جو تنظیمیں ہیں قانون والی جو خواتین کو پروٹیکٹ کرتی ہیں وہ سامنے کیوں نہیں بھی تاکہ ان کا موقف نہیں سامنے آیا؟ دیکھیں قسیم بھائی، معاملہ پھر سے وہی ہے کہ جب برسر اقتدار لوگ اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ تنظیمیں جو ہیں وہ بھی انہی کے سر پرستی چلتی ہیں۔ وہ تنظیمیں کس طرح سے اس کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گی، وہ تنظیمیں کس طرح ان چیزوں پہ جو ہے وہ ان کا موقف سامنے آ سکتا ہے۔ دیکھیں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2024 میں 405 سے زائد ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، رپورٹ ہوتے ہیں۔ یہ وہ میں بات کر رہا ہوں جو رپورٹ ہوئے ہیں، بالکل، جس میں بلوچستان کا حصہ بھی شامل ہے، لیکن صرف ایک سزا عمل میں آئی۔ 405 کیسز میں سے صرف ایک شخص کو سزا ملی ہے۔
अभी हाल ही में 15 साल अमरीकी नस्ल की टिकटॉकर जो है, इसको वालिद ने गोली मारकर हलाक किया। वालिद ने पहले नामालूम हमला दावा किया, मगर बाद में जुर्म को तस्लीम कर लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर सरगर्मी और खुद मुख्ताराना तर्ज जिंदगी को गैरत के नाम पर फर्जी जुर्म बनाकर जान से मार गया। क्या बना? यही कागजी कार्रवाइयां। जाफराबाद या आस्था मोहम्मद बलूचिस्तान, वहां पर इसी तरह का एक वाकया रूनमा होता है। समीना और सावान नाम है लड़का लड़की, उनको कत्ल कर दिया जाता है। पहले इलाका का कहना था कि ये गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। अरे भाई, ये कौन सी गैरत है जो आपकी तब जागती है जब आपकी बेटी किसी से पसंद की शादी की ख्वाहिश का इजहार करती है? जब आप चलते हुए आते हुए घर में बैठे आप दूसरों की इज्जतों को बुरी नजरों से देखते हैं, आप उनकी तजलील करते हैं, तब आपकी गैरत कहां पे होती है? तब आपकी गैरत कहां पे होती है? जब आप इंसानियत का कत्ल होते हुए देखते हैं। ठीक है हमजा भाई, आपका मौका सामने आ गया। बाबर यूसुफ जी, मैं आपकी देखें कसीम भाई, जिस तरह से बाबर साहब फरमा रहे थे कि एजुकेट करना, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इस पे जो है वो नजर डालना चाहूंगा कि हमने देखा कि किस तरीके से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब ने एजुकेट किया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक वर्ड जो है वो एजुकेट कर रहा था उस इलाके के लोगों को। जो वो नाजायज ताल्लुक में थे, कत्ल कर दिया जाए। वो अल्तवाजी रिश्ते में मुंसलिक नहीं थे, कत्ल कर दिया जाए। उनको सजा मिलेगी, कैफे किरदार तक पहुंचेंगे, ये बहुत दूर की बात है। मैंने जैसे पहले भी आप कि एक रोजा जिस्मानी रिमांड उसका दिया जाता है। और आपने अगर हमजा देखा हो तो जब वो अदालत में उसको पेश किया गया तो कोई हथकड़ी भी नहीं लगी हुई थी। जी बिल्कुल ऐसी है। मैंने आपको कहा कि आप ये जिस तरह से अभी बाबर साहब ने भी फरमाया है कि आप खुद देखेंगे कि यही लोग आपको बाहर दंडनाते फिरते नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे वाकयात में ऐसा होता है कि मुद्दई मुकदमा जो होता है वो सुलहनामा कर लेता है। बहुत सारे ऐसे वाकयात में होता है कि रियासत के अंदर जो है वो मुकदमे का अंदाज होता है और रियासत पे उस चीज की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कहीं पर नजर नहीं आती है। मैं कुछ इस हवाले से कुछ अल्फाज जो है वो बाबर साहब की नजर, पाकिस्तान की आवाम की नजर और इंसानियत की नजर ये जरूर रखना चाहूंगा। जरूर। वो सांसें जो कभी माँ की लोरी में बनती थी, आज गैरत के नाम पर गला घूंट दिया गया। इसने सिर्फ जीने की ख्वाहिश की थी, सजा में इससे जिंदगी छीन ली गई। जिसके ख्वाब आंखों में जगमगाते थे, आज वो खामोश कब्रों में दफन है। औरत मार दी गई क्योंकि वो औरत थी। न फैसला करने का हक था, न जीने की इजाजत। इंसाफ आज भी सवाल बनकर तड़प रहा है और कातिल कल फिर किसी बेटी की ताक में है। तो ये बहुत बदकिस्मती है हमारे माशरे की, और ये हमारी इंसानियत की भी बदकिस्मती है, क्योंकि इसमें इंफरादी तौर पर हमारी अंदर जो इंसानियत है उसको जगाने की जरूरत है। रियासतें बाद में जागेंगी, जमीर बाद में जागेंगे, बरसर इक़्तिदार लोगों के, और इसके हवाले से आईन कानून जो है वो बाद में जगह लेगा, सजाएं बाद में होगी, लेकिन सबसे पहले इंफरादी तौर पर अपनी इंसानियत को जगाने की जरूरत है कि हम अपनी इंसानियत को जगाएं और जो असल इसमें शरीके जुर्म लोग होते हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और ये मिसाल कायम की जाए। ये वाकया जो है ये बलूचिस्तान के माजी के तमाम तर इक़दामात को धोने के लिए, साफ करने के लिए एक अहम मौका है बरसर इक़्तिदार लोगों के पास और कानून इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने वाले तमाम उन इदारों के पास कि वो इस वाक़े पे मिसाल के तौर पर जिस तरह से ये वाकया पेश आया और 2024 से लेकर जो रिपोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड पड़ी है उनको मिटाने के लिए ये वाकया एक अहम मौका है कि उसको सजा दी जाए, इबरतनाक सजा दी जाए और उस रीत रिवाज को तब्दील किया जाए और खत्म किया जाए। ठीक है, ठीक है हमजा भाई, आपका आगे। देखिए कसीम भाई, जिस तरह से आपने कहा कि ये अगर वीडियो ना सामने आती, मैंने पहले भी इस पर अर्ज किया है कि बहुत सारे ऐसे मुकदमात, ऐसी चीजें होती हैं जो रिपोर्ट में नहीं होती है। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। उसमें कुछ लोग अपनी इज्जत को जो है वो ढांपने के लिए, उसको मंजरियाम पे ना लाने के लिए वो मुकदमात का इंदराज नहीं करवाते हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि ये चीजें रिकॉर्ड, ये देखिए रिकॉर्ड हमें, आपको या हमारे मनसब से मुताबिक मुंसलिक लोगों को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जो लोग जुर्म करते हैं वो खुद रिकॉर्ड करके हमें देते हैं कि ये देखें हम ये जुर्म कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्हें पता है कि अगर 405 केसेस में एक के बंदे को सजा मिलती है तो वो खुशकिस्मती है उनकी, वो उनके लिए अयाशिना है। वो फिर खुद रिकॉर्ड करके तमाम तर जराइम की वीडियो बना के हमें देंगे। जिस तरह से पंजाब में हाफिजाबाद में वो मियाँ बीवी जो अपने अजीजों कारिब से घर वापस जाते हैं, रास्ते में उनके साथ जो है वो दरिंदगी का उनको निशाना बनाया जाता है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और वो वीडियो वो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी जाती है। तो ऐसे वाकयात जो है वो वीडियो सहाफत से मुंसलिक लोगों को रिकॉर्ड करने की या ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद जुर्म करने वाले लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, वो खुद वीडियो बनाते हैं। उनके दिल में इस बात का जरा खौफ नहीं होता कि हमें इसके नतीजे में सजा हो सकती है, हम पकड़े जा सकते हैं, हम काबिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 405 में एक बंदे को सजा मिली, वो भी किसी बात फर्ज की वजह से मिली होगी कि वो उसका विक्टिम होगा, बिल्कुल उसने उसको सजा दिलवा दी होगी। ये भी खुदा जाने कि वो उस
जुर्म का, उस सजा का मुस्तहिक था या नहीं, वो भी किसी के कहने पे दे दी। ठीक है। अच्छा हमजा भट्टी, जब भी कोई जुर्म होता है तो सबसे पहले FIR फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो दी जाती है और वो मुद्दइयों की जानिब से दी जाती है, लेकिन इस हमने वाकये में देखा कि ना लड़की के घर वालों ने कोई इस तरह की रिपोर्ट जमा करवाई है ना लड़के के घर वालों ने, तो इसकी क्या वजह थी? देखिए कसीम भाई, आप ये देखिए कि कातिल कौन है। ये जवाब बनता नहीं है कि लड़की के घर वाले जो हैं वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे, वो तो खुद कातिल है, वो कैसे इसमें जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं। और इसमें ये वाकया कब का है, कब नुमा होता है, और उसके बाद रियासत इसको जो है वो अपनी मदईयत में इसके मुकदमे का अंदाज करती है। तो रियासत जो अपने मुल्क में बैठे अपनी कौम, अपने पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ न कर पाए, वो इस एक मुकदमे की मदईयत में किस तरह से इंसाफ फराहम कर सकती है। जहां पे गोलियां लगती हैं, सेनेट इलेक्शंस हों, तमाम तर नजरें उस तरफ चली जाती हैं। अगर कहीं पे किसी मिनिस्टर की एक गाड़ी फंस जाए तो हेलीकॉप्टर्स के वहां पे पहुंच जाते हैं, वहां पे प्रोटोकॉल पहुंच जाता है। तो ये चीजें बहुत छोटी हैं, हमें कीड़े मकोड़ों की तरह रोंदा जा रहा है। और ये एक वाकया नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ऐसे वाकयात, मैं कहता हूं कि अगर आप इसकी रिपोर्ट्स निकालने की तरफ जाएं तो जो रिपोर्टेड वाकयात हैं उसमें आपको दर्जनों वाकयात चंद महीनों में मिलेंगे। जो रिपोर्ट होते हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते, वो आपको सैकड़ों वाकयात मिलेंगे। वजह क्या है? हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम जो है वो बेहतर होने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो सजा का एक तरीकाकार है उसको बेहतर होने की जरूरत है। सजा क्या दी जाती है? चंद महीने जेल में रहेंगे, उसके बाद बाहर आ जाएंगे और गंगनाते हुए फिरेंगे। अच्छा हमजा भाई, और ऐसे दर्जनों केसेस हैं जो मिसाल में आप उसमें रिलेट कर सकते हैं। जी अच्छा हमजा भाई, कोई अपनी लड़की अपनी मर्जी से शादी करे तो कत्ल, और अगर कोई शादी ना करे तो फिर भी कत्ल, आखिर औरत का जुर्म क्या है, वो क्यों ऐसे पीछी जा रही है? देखिए ये बहुत गौर फिक्र करने वाली बात है कि हमें एक नेमत से नवाजा गया जिसको औरत कहा जाता है। और मैंने जिस तरह से पहले भी कहा कि औरत माँ होती है, औरत बहन होती है, औरत बेटी होती है, औरत ही बीवी होती है। तो हम इस नेमत को जो है वो जांचने में कोताही करते हैं, हम इसको सही तरीकों से इसकी अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। तो हम जितने मर्जी एजुकेट कर दिए जाए, कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस रिश्ते से मुतालिक जो आगाही है उसमें कमी जरूर होती है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली इस पे हर औरत को कम से कम अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी जहन में रखकर उसकी इज्जत जो है उसको जरूर किया जा सकता है। ठीक है। तो जब आपकी अपनी माँ बहन बेटी आपके जहन में होगी तो फिर इस तरह के वाकयात होंगे। हर औरत की इज्जत को जो है वो करना चाहिए। अच्छा हमजा भट्टी, बलूचिस्तान में अगर कोई सरदार किसी को सजाए मौत दे सकता है, मतलब जिरगा सिस्टम बनाकर किसी को सजाए मौत दे सकता है, तो क्या वहां जो रियासत है वो खत्म हो चुकी है? रियासत के रिट वहां नहीं चल रही? रियासत बलूचिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में रियासत की रेट कहाँ नजर आती है? माजी करीब के वाकयात को आप मद्देनजर रखें और मुझे बताएं कि कहाँ पे रियासत की रेट बरकरार है। कहीं पे किसी की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस हो, वो खत्म। कहीं पे प्रोटेस्टर्स किसी भी सियासी जमात से मुंसलिक हो, उनको जिस तरीके से जो है वो क्रश किया जाता है, माजी में भी इसी तरह से होता रहा, अभी भी ऐसा होता जा रहा है। अब आप देखिए 26 नवंबर में क्या हुआ इस्लामाबाद में, विफाक में ऐसे वाकयात रुनमा होते हैं, तो क्या वो रियासत की रेट बरकरार रहती है वहां? नहीं। कौन करता है ये मुताले? तो बलूचिस्तान को हम जो है वो पॉइंट आउट करते हैं बिलखुसूस ऐसे वाकयात में, तो ये पूरे पाकिस्तान की ये रुदाद है। पूरे पाकिस्तान में ऐसे वाकयात आपको नजर आते हैं। पूरे पाकिस्तान में मैंने आपसे सवाल किया कि कहाँ पे रेट बरकरार नजर आती है रियासत की? कहीं भी नहीं। सिर्फ इलेक्शंस में, सिर्फ वो सेनेट इलेक्शंस हो, वो अपने कुर्सी बचाओ मुहिम हो, वो अपनी जो है वो कुर्सी तहफ़्फ़ुज़ मुहिम हो, उसमें आपको तमाम चीजें नजर आएंगी। और रियासत की रेट तब नजर आएगी जब आप रेड जोन क्रॉस करते हुए नजर आएंगे, रेड जोन की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, तब आपको रियासत की रेट जो है वो नजर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा भट्टी, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम है। उसके अलावा हमारे साथ